आप लोग भाई? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अतिक अली और मेरे साथ हैं तारिक न्याजी। मैं हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप हैं तो सब कुछ है, माँ बाप नहीं तो कुछ भी नहीं। आज की हमारी वीडियो है जो भी है, लेकिन चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें। आज की हमारी वीडियो है नेल्सॉन आज की हमारी वीडियो है एक कंपैरिजन पे। आज की हमारी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है नेक्सॉन ईवी वर्सेस किया सेल्टोस ड्रैग रेस। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। इलेक्ट्रिक वर्सेस पेट्रोल पावर हीट 70। स्टार्टअप बहुत अच्छा है, खूबसूरत। हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत ही अमेजिंग ड्रैग रेस करने वाले हैं। तो पहली कार हमारे पास जो है दैट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट कॉम्पैक्ट SUVs दैट वी हैव हियर, एंड द सेकंड वन इज़ द एंट्री लेवल इंडियन इलेक्ट्रिक SUV। सो आई एम श्योर आप लोग पहचान गए होंगे कौन कौन सी ये कार्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ द किया सेल्टोस एंड द सेकंड वन इज़ द टाटा नेक्सॉन EV। और इस वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि हाउ टाटा नेक्सॉन EV इज़ कंपेयर टू इट्स rivals that are internally combustible engine vehicles, that means petrol powered cars से वो कैसे compare करती है and how it stacks up. So my name is Yashwadi and we're watching Heat 17. Let's get started. मेरे हाथ जोड़ के आप सभी लोगों से बहुत बड़ी गुजारिश है कि प्लीज़ जो भी हम लोग वीडियोस परफॉर्म करते हैं वो बहुत सेफ्टी और प्रिकॉशंस के साथ करते हैं। तो प्लीज़ डू नॉट फॉलो व्हाट वी डू इन आवर वीडियोस। एंड सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो गाइस अपने हेडफोन्स को उठा लो, लगा लो और वॉल्यूम को बढ़ा लो, क्योंकि हम लोग वीडियोस नहीं बनाते हैं, हम लोग क्रिएट करते हैं पूरा का पूरा एक्सपीरियंस। सो हेडफोन्स लगाओगे तभी मजा आएगा और एक सेकंड के लिए भी वीडियो स्किप मत करना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो दिस सेगमेंट ऑफ द वीडियो इज फॉर दोज हु आर प्लानिंग टू बाय अ प्री-ओन्ड और अ सेकंड हैंड कार। सो एंड अ हाईली रिलायबल ऑटो टेक स्टार्टअप, द Cars24 has created an e-commerce platform for the pre-owned auto industry. Cars24 understands and supports the pain and struggle to buy a pre-owned car. So with the help of their innovation and technology, they have created such an easy platform so that people can buy pre-owned cars very simply. So if you are planning to buy a second hand or a pre-owned car, all you have to do is to download the app using the link that I've provided in the description below, or what you can do is you can simply search the Cars24 on your search engine /Google and open their website. So after your website pops up, you will have thousands of cars to choose from. These cars are of highest quality, refurbished and have met Cars24 140 plus parameters. As you can see, there are so many cars to choose from. Pick a car that you want. As of now, I'm choosing Maruti WagonR. You will get to see the car in 360-degree spin and look at interiors as well as exteriors of the car. We can also look at car's inspection report and a brief summary about it. It gets very easy as you proceed and can choose from the financial options available and determine the financial needs on the website /app. So if you are willing to purchase a car, all you can do is you can quickly pay a token amount and take your car out of the common pool, and that car would be booked specifically for you. And also when it comes to payment, there are very attractive financial terms that you can take advantage of, and prices offered are of great savings as Cars24 is completely online. Also, one of the most important things that I really like about this entire process is you get your car at your doorstep, and you can also schedule a test drive at your doorstep. Well, good things doesn't end here, and you can return the car within 7 days and get full refund without any charges getting cut or deducted, and no questions will be asked. Wow, that's amazing, and thanks to Cars24 for making it such an easy process for all of us. प्रमोशन बड़ी जल्दी समझ आएगा। I can feel the power, I can feel the power. Feel the power. Yeah, money that is time and hour. So, yeah, I better activate the power. I'ma activate it, gotta make it, gotta chase it. I don't care what they be saying, I'ma do it now. And I've been really scraping, I ain't giving up and I ain't giving in. Do it now for the dividends, I'll be on the path, I just gotta get it. Cause I got my mind on some bigger things, so man, I ain't gonna give in now. I just gotta live this now. I'm gonna be man, I'ma kill this stuff real quick. I'ma go take it to town, cause I gotta be that king in the ring when I'm knocking him out when I'm back with the wheel. Cause I am just up on the journey, just know that I'm just going inside. टाटा नेक्सॉन है वो।
लेकिन ये जो पेट्रोल जो होती है उसकी ग्रिप थोड़ी सी मजबूत होती है और स्टार्टअप अच्छा होता है। लुक वाइज ग्रीन वाली आई थिंक किया है ना वो, किया सेल्टोस। I am a monster, there's some things that I might see. नेक्सॉन ईवी है। When I Round two do, शुरू हो I गया। could never get no sleep. 'Cause I just need to get it, man, I need to be the thing that I just painted out. Man, you won't go see my vision, I'ma get it, I'ma kill it, I'ma take it all. Coming in, I'ma play it now, I'ma kill him dog, I'ma play the ball, 'cause I gotta go and get him, and I really just need it. Tell these guys that they can beat it, I'ma give it, I'ma grab it, man, take it, never receive it, I'ma make it mine, I'm explosive like a mine. I've been working every time, yeah, I do it on the grind, I'ma shine, yeah, every single day, I'ma kill this competition, 'cause I'm going so insane. Hey, I really go by so insane, yeah, I guess really ran through the pain, but I'm just back on my path, and I fixed it now, it's really okay. So I ain't gonna waste my chance and just my time. So I'ma be a monster, I'ma kill him, this is mine, yeah, yeah. राउंड 2 ये लग रहा है मुझे। हाउ डेयर यू, क्या तुम आगे कैसे निकल सकती हो? टाटा के सामने, टाटा कंपनी क्या बेचती हो? हाँ टाटा मेरी है क्या खरीद लेते हैं लग रहा है। आप इसमें ब्रेक पकड़ो। कौन जीता? क्या एक I पॉइंट am मिला, ready to एक fire. पॉइंट I वहाँ got a million अच्छा, desires EVA that I Tata. just need to go achieve. I just need to acquire. So I've been climbing up this ladder. Yes, I'm going up higher. I gotta be that king in the room, and I'm not getting mad when I'm back with the flow. I am just up on the journey, slowly, then I'm just going insane. जो मज़ा आ रहा है तो मैं टाटा में बैठी हुई अच्छा आप अपने आप को यहाँ फील कर रही है। यकीन करें मुझे लग रहा है मैं ट्रैवल करूँ। क्या हुआ आनंद? राउंड 1 में Yeah, I am ready 7.98 to fire. I got a million Ready to desires fire. that I just need to go achieve. I just need to acquire. So I've been climbing up this ladder. Yes, I'm going up higher. I need to do it till the day that I might retire. ये माय गॉड, मतलब टाटा नेक्सॉन ईवी रेस कितनी आसानी से जीत गई। अगर 120 स्पीड लिमिटर नहीं होता ना नेक्सॉन ईवी में, भाई एक राउंड भी नहीं जीत पाती किया सेल्टोस। बट हम लोग एनालाइज करेंगे कि क्यों ये टाटा नेक्सॉन रेस जीती। उसका वजन ज़्यादा है, उसका टॉर्क टू वेट रेशियो कम है, उसका पावर टू वेट रेशियो भी कम है, बट ये सबसे कुछ मैटर नहीं करता। सो लेट्स फाइंड आउट व्हाई एंड हाउ दिस हैपेंड। लेट्स गेट इनटू द हीट एनालिसिस। Just like any other automatic electric vehicle, Tata Nexon delivers the power and torque right from the start. और यही इसका प्लस पॉइंट है, क्योंकि Kia Seltos को बहुत टाइम लगता है अपने टॉप रेंज आने में, जिसमें उसको मैक्सिमम पावर भी मिल जाएगी, मैक्सिमम टॉर्क भी मिल जाएगा। लेकिन टाटा नेक्सॉन के साथ ये कोई इश्यूज ही नहीं है। बट ऑन द अदर हैंड Kia Seltos 1.4 TGDI is not at all an easy car to beat. It has 6-speed manual gearbox. You can launch this car the way you want. It has traction control. You can use it to launch yourself better off the line. And similarly, when you get into the race, you notice कि यार Kia Seltos स्टार्टिंग में हमेशा लीड ले लेती है, क्योंकि मैनुअल है, कंट्रोल कर सकते हो आप। और लेकिन जैसे ही 20-30 मीटर्स में अपना नेक्सॉन ईवी जो कंप्लीट पावर दे देती है, it goes completely bonkers. It rotates its wheels so fast, पूरा स्किड बिट लगता है और इतनी तेज आगे निकल जाती है, फिर उसके बाद कोई उसको पकड़ नहीं सकता। लेकिन एक यहाँ पे सबसे बुरी चीज़ ये है कि इसमें 120 किलोमीटर पर आवर का लिमिट लगा हुआ है। अगर वो लिमिट आप हटा दो तो कोई भी
गाड़ी किसी भी सेगमेंट की, आई मीन किसी की भी तो नहीं, लेकिन अंडर 25 लाख इस कार को पकड़ नहीं पाएगी इवन एट हायर स्पीड्स। एक दो चीज़ें फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द फिगर्स फर्स्ट। सो किया सेल्टोस का जो पावर टू वेट रेशियो है दैट इज 110 bhp per ton, whereas the torque to weight ratio is 194 bhp per ton। लेकिन जो आपकी टाटा नेक्सॉन EV है वो 91 ब्रेक हॉर्स पावर है और उसके अंदर जो टॉर्क टू वेट रेशियो है दैट इज ऑल्सो 175 न्यूटन मीटर पर टॉर्क। अब यार इतना ज़्यादा सारी चीज़ें अगेंस्ट हैं, प्लस एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये 150 किलो सेल्टोस से भारी भी है, लेकिन भाई नेक्सॉन EV को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको रेस जीतनी है तो मतलब सिर्फ जीतनी है। एंड आई थिंक द की लर्निंग फ्रॉम दिस वीडियो वॉज और फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट वॉज, जो हमारे जो रेव्स होते हैं एक लिमिट के बाद आके हम लोगों को मैक्सिमम पावर और हमें मैक्सिमम टॉर्क डिलीवर होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक कार्स में पावर एंड टॉर्क राइट वी गेट राइट फ्रॉम द स्टार्ट, एंड व्हेंस यू आर थ्रू विद द मैनुअल मिली सेकेंड्स जो आप चेंज करते हो गियर, उसमें वो अपना मैक्सिमम पावर डिलीवर कर चुकी होती है एंड द कार टेक्स द लीड एंड इट बिकम्स एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल टू कैच एन इलेक्ट्रिक व्हीकल। सो सिमिलरली दिस थिंग हैपेंड और टाटा नेक्सॉन EV बहुत कंफर्टेबली इस रेस को जीत गई। So I think Tata Nexon is a great car, EV is a great car, and 100%. this will create a huge dent in our ICE engine industry. So thank you so much for watching this video। और आपने हमारे पहले के वीडियोस भी देखे हुए हैं। अगर आप हमारे वीडियोस को एंजॉय करते हो तो लास्ट वीडियो में मैंने रिक्वेस्ट किया था टू गेट अस क्लोजर टू 25,000 सब्सक्राइबर, सो प्लीज़ मेक इट हैपन दिस टाइम प्लीज़। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट सो दैट वी कैन गेट मोर एंड मोर इंटरैक्टिव एंड एक्सक्लूसिव कंटेंट ओनली फॉर यू। थैंक यू जी जनाब। सबसे पहले तो इन्होंने एक अपने चैनल की प्रमोशन किस तरह की कि नंबर प्लेट की जगह पे उन्होंने अपना नाम लगाया Heat 7। क्या क्रिएटिव आइडिया है, मतलब टोटली कार के साथ साथ उनके चैनल का नाम भी बार बार हमें दिख रहा था Heat 17, मतलब जीनियस। सेकंड, दो गाड़ियों का कंपैरिजन किस खूबसूरती से किया, यानी कि प्रैक्टिकली हमने इस वीडियो को एंजॉय किया, ऐसा कहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही। हमने इस वीडियो को मुझे उन्होंने कहा ना कि हमारा मकसद वीडियो बनाना नहीं है, हमारा मकसद है कि हम क्रिएट करें एक्सपीरियंसेस आपको बिल्कुल दिखाएं। ज़बरदस्त। बाकी हमें ऐसा लग रहा था हम ट्रैवल कर रहे हैं, हम कोई रेसिंग कर रहे हो और मतलब मज़ा आ रहा था, हम गेम खेल रहे हो। इंटरेस्ट था कि वाकई हम जीतने वाले हैं, हम हारने वाले, तो बहुत फीलिंग्स आ रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था। Heat 17 जो चैनल्स है, इस चैनल की पहली वीडियो पे हमने रिएक्शन दिया है, ठीक है ना। तो इस तरह की वीडियो हमने पहले नहीं देखी थी, तो हमें बहुत ही यूनिक आइडिया लगा, बहुत ज़बरदस्त लगा। और कंपैरिजन तो नॉर्मल दिया ज़्यादा होता है, डिटेल बताई जा रही होती है, बताना है, ये करना वो करना, लेकिन इस तरीके से मतलब बिल्कुल प्रैक्टिकली करके दिखाना है कि कमाल है, मज़ा आ रहा था, मज़ा आ रहा था, प्रैक्टिकली मज़ा आ रहा था, ऐसा लगा था वाकई हम कोई रेसिंग कर रहे हो। और फिर एंड में वही टाटा नंबर 1 और EV। अच्छा EV के तो वैसे ही बहुत बेनिफिट्स हैं, बहुत फ़ायदे हैं EV के, इन्वायरमेंट वगैरह, माहौल, फिर आने वाले वक्त में EV का ही दौर है, तो ये सारी चीज़ें तो। लेकिन एक बात है, किया मोटर्स की भी मैं बात करूँगी कि आपने देखा था लुक वाइज बहुत अच्छी थी, बहुत ज़बरदस्त, और फीचर्स भी बहुत अच्छे थे, सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि उन्होंने अपनी तरफ से 100% दिया होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, जाहिर सी बात है। टाटा को बीट करना, मैंने बहुत सारी वीडियोस में अपनी कहा है कि टाटा को बीट करना बहुत मुश्किल है। और फिर आपने तो शुरू में ही कह दिया था कि टाटा जीतेगी, इत्तेफाक से। अच्छा वैसे एक बात मैं बिल्कुल सच्ची बताऊं कि हमें कोई नॉलेज नहीं थी कि वीडियो में एंड में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। बस वो मेरा मतलब वो एक होता है ना, दिल से मुझे लग रहा था टाटा जीतने वाली है। और एक बात और मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि हम कभी भी पहले वीडियो नहीं देखते, जो वीडियो आती है वीडियो सेलेक्ट ज़रूर करते हैं, ठीक है ना, वीडियो सेलेक्ट ज़रूर करते हैं, और हम किस वीडियो पे रिएक्शन दें। हम इसलिए भी नहीं देखते कि वो जो नेचुरल, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं होती है, हम पूछ भी रहे होते हैं अपने व्यूवर्स से कि आप बताइएगा ऐसा, अगर हम पहले से सर्च कर लें या पहले से देख लें तो नॉलेज हो, लेकिन वो रिएक्शन, वो एक्सप्रेशंस, वो एक, मैं कहता हूँ कि अगर आप पहले वीडियो देख लो तो आपको मतलब वो मज़ा नहीं आएगा, वो मज़ा नहीं आएगा। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आप लोग भी। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ, जितने भी कमेंट्स आते हैं हमारी वीडियोस पे, आप अक्सर कमेंट पढ़ती हैं, आपने नोट किया होगा कि सारे ही बहुत ही माशाल्लाह से एजुकेटेड लोग हैं। हमारे चैनल्स के जितने भी व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं,
सारे ही अच्छी पोस्ट पर, अच्छी मतलब बिजनेसमैन Well जो भी qualified हैं है, अच्छे एजुकेटेड है, चीज़ों को समझते हैं और हमसे इंटरेक्ट करते हैं कमेंट्स के थ्रू, तो उससे मुझे आइडिया हो रहा है। तो आप लोग खुद अपने दिल से बताएं, क्या हम जब वीडियो देख रहे होते हैं तो क्या आपको ऐसा लगता है कि हमने पहले से देखी है? नहीं नहीं ना, वो फेकनेस तो अलग समझ में आ जाती है। बिल्कुल, fake मैं कहता हूँ और एक कि रियल। देखिए हमारा मकसद यही है कि रियल रिएक्शन देना, जो हमारा ऑन रिएक्शन हो। बिल्कुल। और वो आप देख पाएँ। अगर पहले से देख लेंगे तो फिर वो तो हमें अंडरस्टूड होगा, पहले से हमें पता मज़ा- होगा ये होने वाला है, ये वो होने मज़ा वाला है। नहीं आएगा। मज़ा नहीं आएगा, इंजॉयमेंट नहीं होगा, हम खुद भी इंजॉय नहीं कर पाएंगे, जो बात है। बिल्कुल ऐसा ही जो बात है। कैसे कैसे नहीं, एक दफ़ा जो बात है, ऐसे नहीं था, वो जो था ना, वो जो था वैसा जो बात है। नहीं, ऐसा नहीं था। जो बात है कैसा था, ये भी रियल था, ये भी लेकिन रियल fake हो गया ना। अब मज़ा नहीं। तभी रियल वाला होना चाहिए। अच्छा, अब आप समझ गए कि मैं क्यों कह रहा था तो वो। अब वो हो गया ना एक दफ़ा। हाँ, और जो हंसना भी होता है एक ही दफ़ा में होता है। जो हंसना होता है इंसान की हाँ, बेख्तियार हंसी निकलती है। प्यार, वो जो एक इमोशंस, एक फीलिंग्स। तो आप लोगों का प्यार हमारे साथ जुड़ा रहे, आप इसी तरह हमारी वीडियोस देखते हमारे रहें। चैनल को सब्सक्राइब किया करें भाई। वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते। और हाँ, शेयर नहीं एक करते, ये एक गलत बात है कि कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो डाली थी, 2-3 वीडियो डाली थी 3 तारीख को। तो उसमें थोड़ा सा एक इशू आया था चैनल्स पर कि वीडियो की कुछ सेटिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम थी, तो वीडियो डिलीट करके दोबारा डाली गई। तो यूट्यूब के कुछ एल्गोरिदम है, तो जिसकी वजह से वो वीडियो आप तक दोबारा नोटिफिकेशन नहीं आया होगा। तो 3 तारीख की वीडियो 3 तारीख 3 तारीख की जो वीडियो है। 3 तारीख की जो वीडियो है वो आप जाकर सर्च कर लें दोबारा से, आप लोग तक नोटिफिकेशन शायद नहीं आया होगा। उसकी वजह ये है कि उसकी जो इम्प्रेशन है वो भी कम पड़े हैं, हमें कम दिख रहे हैं, और आप उस पर व्यूज़ भी इतने नहीं आए हैं। तो 3 तारीख की जो 3 वीडियोज़ डली हैं, आप उसको हमारी वीडियोज़ के अंदर जाकर देख लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि हम वीडियोस बनाते हैं आपके लिए, बिल्कुल। और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप देखें। तो दोस्तों, वो 3 वीडियोज़ के थंबनेल हो सकता है मैं साइड पे वीडियो पे इस वक्त लगा दूँ, तो आप देख लीजिएगा क्या क्या टॉपिक थे। तो उन 3 वीडियोज़ को आप डायरेक्ट जाके देखना पड़ेगा, आपको नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आया होगा। तो दोस्तों, दोबारा किसी और वीडियो के साथ मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।